वेलकम बैक गाइज, और आज हमारे पास है 10 Hi-Fi का C2 Mech Warrior. And before we get started, I'd like to thank Hi-Fi Go for sending out this unit. So let's get started. Once again, thanks to Hi-Fi Go for making this video possible. तो स्टार्ट करते हैं बिल्ड क्वालिटी के साथ। तो यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है, इट्स ग्रेट फॉर इट्स प्राइस। 2500 रुपए के आसपास आपको इंडिया में मिल जाएगा अगर आप इसको इंपोर्ट कराते हैं तो। 10 Hi-Fi has gone ahead and give us a metal build. अब यहाँ पे जो इंक्लूडेड केबल है, it could have been better compared to something like the 7Hz0. वहां पर आपको थोड़ा सा बेटर केबल देखने को मिलता है in my opinion. This cable is a little thin and थोड़ा सा मेमोरी पकड़ ले रही है, तो शेप पकड़ ले रही है अपनी, तो दैट इज अ लिटिल बिट अनोइंग। इनिशियल एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो आई वाज वेरी स्केप्टिकल इस डिवाइस के साथ बिकॉज ऑफ द नेम, और यहाँ पर आई थॉट इट विल बी अ बेसी एंड हाई फन सेट समथिंग लाइक दैट, बट एंड यहाँ पे वी हैव अ प्रिटी वेल ट्यून्ड IEM. आई डोंट नो व्हाई वुड यू नेम अ ब्यूटीफुल साउंडिंग IEM Mech Warrior, and this review is highly dependent on my ear and your mileage may vary. यहाँ पर हमें जो साउंड सिग्नेचर मिल रहा है वो है वार्म प्लस वोकल सेंट्रिक, और यहाँ पर I was very surprised with how good their vocals sound on this device, especially male vocals, and the instruments are sitting quite well. उसके साथ साथ जो mids बाकी हैं वो काफ़ी सही चल रही हैं, but the main highlight of this set is how intimately it plays vocals. और specifically अगर मैं examples की बात करूँ यहाँ पर Paprika by Kenshi Yonezu, that sounds very very good on this set. Kenshi के vocals are golden here. Next song पसूरी की बात करते हैं, उसमें भी male vocals are the highlight, and they are played very closely to your ears, and they are separated quite well and very clear vocals. Female vocal representation is also very good as the example of Suzume. Towards the end moment of the song वहाँ पे थोड़ा सा high चली जाती है ली ही, तो वहाँ पर हल्का सा sibilance है। Particularly I noticed this sibilance only in this particular song. ऐसा disruption causing sibilance नहीं है, but specifically इस song में मेरे को मिला, that's why I mentioned it here. और कोई song with female vocal जिसमें high जा रहे हैं, for example like Ariana Grande, I didn't witness the sibilance. Maybe it is because of the recording quality. Now let me move ahead with the bass. तो यहाँ पे जो bass है, it is quite boosted towards the sub bass. Sub bass को थोड़ा सा ज़्यादा focus दिया हुआ है. Mid range is a little bit bumped, but it is still clear, and the mid bass is pretty accurate and tight. ज़्यादा मिड बेस में बूस्ट होने के बावजूद भी इट फॉर माई ईयर्स इट साउंड्स boomy and tight at the same time, and specifically for non bass heavy tracks the bass is just shut off. बहुत ही अच्छा सेपरेशन है वहाँ पर भी, और उसके साथ साथ अगर आप जैसे ही बेसी सॉन्ग पे स्विच करते हैं, this thing shows its capabilities in the bass side as well. Let's take the example of Rumbling. तो यहाँ पर दिस सॉन्ग इज वेरी वेरी बिजी, उसके साथ साथ यहाँ पे ड्रम्स चल रहे हैं, गिटार्स चल रहे हैं, अलग तरह के गिटार्स चल रहे हैं, वोकल्स भी चल रहे हैं, डिस्टॉर्शन साउंड्स भी चल रही हैं, एंड इट प्लेज इट प्रिटी वेल. और वहीं पर जो बेस का ड्रमिंग का आवाज़ है अलग अलग ड्रम्स पे पड़ने की, इट्स वेरी गुड. अगर मैं वहीं पे बात करता हूँ गॉट द बीट का स्टेप बैक, तो वहाँ पर 2 minutes 45 seconds पे एक मूवमेंट है बेस का, तो वहाँ पर द रंबल इज अ लिटिल बिट डाउन. वहाँ पे जो रंबल है इट कुड हैव बीन अ लिटिल मोर टाइटर for my preference compared to something like the 7Hz0 or even the Tangzu Warner. Overall I like the bass presentation here, and compared to something like the 7Hz0 it has a tidbit more bass, and compared to the Warner it is a little bit tamed down. Zero would have a tighter bass. Next would be the C2 with a little more heavy bass emphasis, and last में I will put the Tangzu Warner. अभी जितना टेस्टिंग किया है उस हिसाब से टांगजू में थोड़ा सा टाइटनेस मेरे को अभी कम लग रहा है, बट द बेस अमाउंट इज हेवियर ऑन टांगजू Warner. एंड हाइज आर प्रिटी वेल डन. ऑल्सो एक्सटेंशन यहाँ पे जितना है वो ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे एयर प्रेजेंस भी मिल रहा है, और कोई वियर्ड पीक्स नहीं है हमारे पास यहाँ पे, तो इट रोल्स ऑफ प्रिटी गुड. और वहीं पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हाई टोन्स की, फॉर एग्जाम्पल Arabesque बाय Coldplay, तो यहाँ पर सेक्सोफोन की जो वॉइस है वो सम IEMs आई हैव मेक इट वेरी शार्प, बट यहाँ पर वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. वंस अगेन द एग्जांपल ऑफ रंबलिंग, वहाँ पे काफी सारे बिजी नोट्स हैं, तो हाई टोन्स भी शाइन कर रहे हैं अलग से. द स्पार्कल इज देयर. कॉल मी बेबी बाय एक्सो, तो वहाँ पर ब्रीदिंग की साउंड्स और वो सब अवेलेबल है. उसके साथ साथ सुजुमे का एग्जाम्पल फिर से लेते हैं, तो वहाँ पर फीमेल वोकल्स बहुत अच्छे प्रेजेंट हो रहे हैं, एटलीस्ट फॉर दैट सॉन्ग. नेक्स्ट बात करते हैं इसकी टेक्निकल परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर रेजोल्यूशन इज गुड. 10T2 इज माई बेंचमार्क फॉर बजट रेंज, तो वहां से इट इज अ टिडबिट डाउन. इमेजिंग एंड साउंड स्टेजिंग कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर कंपेयर्ड टू द 10T2 प्लस. रेजोल्यूशन इज बेटर देन द ब्लॉन्ड BL03, एंड आई फील Zero एंड टांगजू Warner से भी रेजोल्यूशन थोड़ा सा टिडबिट नोटिसेबली बेटर है. I personally like this sound signature a lot,
एंड उसके साथ साथ कमियां ज़्यादा निकाल नहीं पाया, बट देन आई रियलाइज्ड कि जो इसके शार्प एजेस हैं थोड़े से, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म वेयरिंग में। तो मेरे को इसकी जो पोजीशन है थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, वरना ये कान में थोड़ा सा टच होता है तो यू कैन फील इट। और उसके साथ साथ केबल क्वालिटी कुड हैव बीन मच बेटर, एंड फॉर सम ट्रैक्स द बेस कैन बी अ लिटिल टू बूमी, एटलीस्ट फॉर माई टेस्ट। सो फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं तो पर्सनली आई वुड रिकमेंड दिस सेट फॉर एनीवन लुकिंग फॉर अ वेरी इंटीमेट साउंड और वोकल वगैरह के लिए, एटलीस्ट मिड रेंज में, एंड यू एक्चुअली फील कि प्रेफरेंस मिल रहा है वोकल्स को, वोकल्स आर वेरी क्लियर एंड क्रिस्प। उसके साथ साथ बेस इज नॉट फॉरगॉटन आउट ऑफ द इक्वेशन, और वहीं पे उसके साथ साथ यहाँ पर हाई टोन्स भी फॉरगॉटन नहीं है, बट अ लिटिल टेम्ड हाई टोन्स में। एंड उसके साथ साथ अगर इस प्राइस पॉइंट में आई वुड डेफिनेटली बी रिकमेंडिंग दिस सेट, बट कंपेयर टू द 7Hz Zero, जहाँ पर हमें इन बॉक्स भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं एंड अ बेटर केबल एज वेल विदाउट स्पेंडिंग मच। एंड उसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ तांगजू वॉर्नर की, तो वहाँ पर भी यू विल गेट अ लिटिल मोर टिडबिट मोर बेस कंपेयर टू दिस सेट। इन माई ओपिनियन दिस सेट इज स्पेसिफिकली फॉर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर वोकल फॉरवर्ड म्यूजिक। तो वहीं पर अगर आप वोकल ज़्यादा सुन रहे हैं तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू चेकिंग दिस आउट। तो इतना था गाइस इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे कमेंट्स करके बताइए आपके क्या थॉट्स हैं इस सेट के बारे में। एंड वंस अगेन आई लाइक टू थैंक्स Hi-Fi Go फॉर सेंडिंग आउट दिस यूनिट। और अगर आपको कोई ऑर्डर रिलेटेड क्वेरी है तो वो भी नीचे कमेंट्स में डाल दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।